राजकोट के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में देश के अग्रणी राष्ट्रीय समाचार चैनल साधना न्यूज के राजकोट ब्यूरो कार्यालय के शुभारंभ और गुजरात विस्तार समारोह आयोजित हुआ। इस गरिमामय समारोह में साधना न्यूज के चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना, गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री कांतिभाई अमृतिया, डॉक्टर दर्शिता शाह, विधायक राजकोट अश्विन भाई रावल, गायत्री पीठ राजकोट, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जयेश भाई राडरिया, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जीतूभाई लाल, ऋषि गोस्वामी, जगनेश पटेल सहित उद्योग, सामाजिक और पत्रकारिता जगत की कई विशिष्ट हस्तियां उपस्थित रहीं। साधना न्यूज के चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना ने अपने प्रेरक और ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि कलम केवल शब्द नहीं लिखती, वो आने वाली पीढ़ियों का इतिहास लिखती है। उनके इस विचार ने समारोह में उपस्थित अतिथियों, पत्रकारों और समाज के प्रबुद्ध जनों को गहराई से प्रभावित किया। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि पत्रकारिता केवल घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और समाज की चेतना का सशक्त माध्यम है। જરૂરી છે કે જે ન્યૂઝ ચેનલો હોય, ખબરપત્રીઓ હોય, એ સાચી માહિતી સમાજ સુધી પહોંચે। સમાજનો સાચો અવાજ એ સત્તાધીશો સુધી પહોંચાડે। આ એક માધ્યમ છે। જેને કીધું ને ચોથો આધારસ્તંભ ચોથી, ત્યારે અગાઉ તો શું હતું કે બહુ આવા જર્નાલિસ્ટ કોર્સ બહુ ઓછા હતા અને સામાન્ય સમજદાર લોકો પત્રકારિત્વ કરતા, લોકોનો અવાજ સત્તાધીશ સુધી પહોંચાડતા અને એને સન્માન પણ મળતું, પણ સાચી વાત કરતા। પત્રકાર એટલે કે ન્યૂઝ ચેનલ એ એક સમાજની કરોડરજ્જુ જેવું છે। એમાં સત્ય એ પાયામાં હોવું જોઈએ। સત્યમ પરમ ધીમહિ। સત્ય છે એ પત્રકારોના પાયામાં હોવું જોઈએ। બીજું કે ભાષા એ એનો વિવેક। તમે એવી ભડકાયેલી ભાષા હોય અને જે રજૂઆત કરે તો લોકોમાં ખુન્નસ જાગી જાય, પણ સાચી વાતને સાચી, પણ જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે મઠારીને જો રજૂ કરવામાં આવે તો સમાજ સુધી એનો સાચો અવાજ પહોંચે અને સમાજ એની કદર પણ કરે। ભારતના પ્રધાનમંત્રી સમયના શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ જ્યારે રાતોરાત એક કટોકટી લાદી અને સાધના ન્યૂઝ ચેનલનું સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતમાં લોન્ચિંગ સેરેમનીમાં આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત સંત શ્રી બાબુ, સાધના ન્યૂઝ ચેનલના હેડ આપણા ઋષિભાઈ ગોસ્વામી, જિગ્નેશભાઈ અને ઓલ ઓવર હેડ આપણા અરુણભાઈ સક્સેના અને આટલી વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત તમામ ભાઈઓ, બહેનો અને વડીલો,
આજનો કાર્યક્રમ જે છે ખૂબ આપણને રાજીપો થાય એવો કે સાધના ન્યૂઝ ચેનલ હવે ગુજરાતમાં પણ પ્રખ્યાત થવા જઈ રહી છે. એનું લોન્ચિંગ સેરેમની છે અને જેમ ઋષિભાઈએ વાત કરી એ રીતે સૌરાષ્ટ્રનો કાર્યક્રમ આ પહેલો રાજકોટમાં છે અને બીજો અમદાવાદ અથવા તો ગાંધીનગરમાં લોન્ચિંગ સેરેમની થવાની છે. સાધના ન્યૂઝ ચેનલ આજનો પવિત્ર દિવસ એટલે અષાઢી બીજનો દિવસ. દરેક હિન્દુઓ માટે સૌથી પવિત્રમાં પવિત્ર તહેવાર અને સૌથી શુભ મુહૂર્ત એટલે એ આજનો દિવસ ગણાય. સૌપ્રથમ તો આજના શુભ દિવસે જ્યારે આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી જગન્નાથને હું પ્રાર્થના કરું છું કે આપણને સૌને ભગવાન જે રીતે અષાઢી બીજનો વરસતો વરસાદ અત્યારે છે એ જ રીતે આપણા સૌ ઉપર સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને જ્ઞાનની કૃપા વરસાવતા રહે. આજથી સાધના ન્યૂઝ ચેનલનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. નામ જ સાધના છે એટલે કે સત્ય અને સત્ય માટે એક સાચો સંકલ્પ કરનારી ન્યૂઝ ચેનલ એટલે સાધના ન્યૂઝ ચેનલ. દરેક લોકોની વાત સાચી રીતે સાચા માધ્યમથી સમાજના એક સાચા પ્રહરી તરીકે સાધના ન્યૂઝ ચેનલ આજથી શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યું છે. સૌરાષ્ટ્ર ખાતેની આજની આ ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની જનતાને સાધના ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી પરિપૂર્ણની ખબર, પોતાની વેદના, પોતાની વાત અને સમાજની સાચી વાત એ દરેક લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ આજથી આ સાધના ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી થઈ રહ્યું છે. ત્યારે સૌ પ્રથમ તો હું આદરણીય શ્રી ઋષિભાઈ અને જિગ્નેશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આપે ખૂબ સરસ રીતે ખૂબ સુંદર ભાવથી આ साधना न्यूज चैनल नो शुभारंभ કર્યો છે। क्योंकि गुजराती बहुत अच्छे से नहीं आती है, आप बोलते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन जितना अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बोला है उसमें निश्चित रूप से गर्व का विषय रहा कि साधना के लिए सबके मन में एक गौरवान्वित करने वाले विचार हैं, एक अच्छी शुभकामनाएं हैं। और आज चूंकि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पर है, चूंकि पूरे भारत में ही है, और ऐसे में भी इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं वो उपस्थित हुए हैं, संत महात्मा उपस्थित हुए हैं, विधायिका महोदय जो है उपस्थित हुई हैं, और आप सभी लोग जो सुदूर अंचलों से आए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। साधना न्यूज सैटेलाइट चैनल, चूंकि पत्रकार हूं तो बात वैसी ही करूंगा, किसी परिचय का मोहताज नहीं। 1998 से लेकर आज तक निरंतर प्रगति के नए आयामों पर पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जो है चल रहा है, और आप सबके अटूट प्रेम और इन संत महात्माओं के आशीर्वाद से इस चैनल की जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है निभाने की, वो मुझे मिली हुई है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। कार्यक्रम में हमारे जो सीएमडी हैं जीसी जैन साहब उपस्थित होने वाले थे, लेकिन वही पारिवारिक कारण और कुछ अन्य कारणों से उपस्थित नहीं आए, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं उपस्थित हुआ हूं। साथियों, बात यहां आई थी कि पत्रकारिता क्या, व्हाट इज द जर्नलिज्म। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा और ऐसे कॉर्नर पर बात छेड़ी थी अमृतिया जी ने कि आज देखिए हर हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के पास लैपटॉप है, सोशल मीडिया पे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, खबरें सबको पता पड़ जाती हैं, खबरों की कोई सीमा नहीं है, खबर एक ही तरीके की होती है। अब उसका एक अंदाज होता है कि भास्कर उसे किस तरीके से लिख दे, पत्रिका उसे किस तरीके से लिख दे, अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल्स हैं वो उसे किस तरीके से प्रस्तुत कर दे, और साथ ही साथ जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने पहले भी कहा है कि हर हाथ में मोबाइल है, तो खबर सब पर पहुंच रही। लेकिन क्या उसके कंटेंट, क्या उस समाचार जो आप तक पहुंचा है उसकी वस्तुनिष्ठता हमने जांची है, उसके तथ्यपरकता हमने देखी है, उसके सत्य होने की, यह खबर जो फेक नहीं है, गलत नहीं है, असत्य नहीं है, इन सब बातों में
जो बेसिक अंतर हमें करना है वही असली मायने में पत्रकारिता है। ऐसा नहीं है कि केवल जल्दबाजी के चक्कर में कि मैं सबसे पहले ब्रेक कर दूं और खबर का अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो उस जो जल्दबाजी है उससे हमें बचना है, कंटेंट पर ध्यान देना है, वस्तुनिष्ठता हमको लाना है, ऑब्जेक्टिविटी हमको लाना है और साथ ही साथ जो वस्तुनिष्ठता है, खबर की सत्यता है, उससे हमें परे नहीं होना है। तो जर्नलिज्म जो है वो यही है, समाज का जो दर्पण है, प्रजातंत्र का सजग प्रहरी यदि पत्रकार को कहा जाता है, प्रजातंत्र के 4 स्तंभ में से यदि चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। देखिए कोई भी भवन या इमारत पिलरों पर खड़ी होती है और मुख्यतः 4 पिलर, हम छोटे यदि रूम की बात करें तो उसी तरह से जो समाज का एक महत्वपूर्ण पिलर है वो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है और उसकी पत्रकारिता है। जो पत्रकारिता है उससे किसी की संवेदनाओं को, किसी के आवेगों को, किसी की जो है निजता का हनन न हो। पत्रकार का जो काम है वो निश्चित रूप से यह है कि वो अपने कार्य को करे, अपने राग द्वेष प्रेम इन सब से परे हटकर जो न्यूज है, जो समाचार है उसका प्रकाशन करे। उसके आड़ में फिर चाहे उसका परिजन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई नहीं आना चाहिए। ये निश्चित रूप से पत्रकारिता की एक ऐसी परिभाषा है जिसको कि हम स्तरीय पत्रकारिता कह सकते हैं। देखिए आज जो है बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सौराष्ट्र प्रदेश में राजकोट में सौराष्ट्र ब्यूरो कार्यालय का हम उद्घाटन करने आए हैं। मैं साधना न्यूज चैनल है डॉक्टर अरुण सक्सेना, इस पूरे गुजरात प्रदेश में चूंकि यहाँ डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है तो उसी कड़ी में हमारे यहाँ के जो स्टेट हेड है ऋषि गोस्वामी जी और सौराष्ट्र के ब्यूरो हेड है दिग्नेश पटेल जी, साथ में तमाम जो लोग हैं आज यहाँ मंत्री जी और विधायक जी, संत लोग, उन सभी की गरिमामय उपस्थिति में जो कार्यक्रम यहाँ इस ऑडिटोरियम में किया गया। चूंकि साधना न्यूज सैटेलाइट चैनल है और उसके उद्घाटन के अवसर पर राजकोट में हम पहली बार अपना कार्यालय उद्घाटित कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ से बार बार आग्रह इन लोगों का था कि आप आएं। सीएमडी भी इस प्रोग्राम में आने वाले थे साधना न्यूज के, अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए। साथ ही साथ जो चर्चाएं विद्वान वक्ताओं के द्वारा की गई उसमें उन्होंने जो अपेक्षा रखी कि जो पत्रकारिता होती है उसका जो वर्तमान में स्वरूप बदल रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ आप बोले। तो उसके लिए मैंने कहा भी है कि पत्रकार सब होते हैं, सृष्टि के सबसे पहले पत्रकार ही नारद होते थे और उन्होंने जो है अपनी बातचीत, चूंकि उनको टेलीपैथी आती थी, अंतर्ध्यान होकर उस बुराई को ले जाके वो समक्ष रखते थे और उसको जो है दूर करने का कार्य होता था। तो आज हमने भी साधना न्यूज के माध्यम से यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के जो विधायिका है, न्यायपालिका है, मंत्री जी जो आए थे, उनसे सबसे ये आग्रह किया है कि हम आपके सामने जो है बुराइयों को लाके रखेंगे समाज की और उस कांच की भांति रखेंगे जो पारदर्शी होगा, तो उन्हें दूर करने के आदेश मंत्री जी के जो प्रतिनिधि थे उनसे हमने आग्रह किया। तो उन्होंने हम स्वीकार किया कि हम निश्चित रूप से अपने अधिकारी कर्मचारियों को बोलकर जो आप समस्याएं बताएंगे उनको दूर करने का प्रयास करेंगे।